Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular video, we are going to discuss the question that is given in this particular chapter, electrochemistry in NCERT, right? So we will discuss both in text as well as exercise question. So let's start our discussion. तो पहला question लेते हैं हम लोग. So this is the first question. How would you determine the standard electrode potential of the system Mg plus to Mg, right? तो इसके लिए करना क्या है? Simple. Standard अपने को electrode potential निकालना है, right? So let's calculate this. E naught mg plus 2 and mg, right? So this is basically nothing but your SRP, right? Standard reduction potential. So we have to calculate this standard reduction potential, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस half cell को basically this half cell we have to connect this half cell with what? SHE. तो standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसको क्या करो आप कनेक्ट कर दो, राइट? सो हाउ वी विल कनेक्ट दैट, लेट्स सी दैट आल्सो and then we can find easily. So you see this particular diagram here, right? Measuring the standard electrode potential of magnesium. Here what we have done, this half cell, let's take some different color. ये जो देखो half cell है basically, right? We are connecting with what? SHE, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे basically what you see here, एनोड पे बेसिकली क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है, वी नो दैट. सो Mg इज सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू Mg प्लस 2 एक्वस एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? ठीक है. एंड यहां पे कैथोड पे क्या होगा? सो ऑन कैथोड द रिएक्शन विल लुक लाइक दिस, 2H प्लस aqueous and plus 2 electron, and that is giving you what? H2 gas. Because we are calculating or we are finding the standard electrode potential, so we have to keep all these in what? Standard condition, right? जैसे Mg plus 2 का आपको क्या लेना है? So it is what? Your 1m, right? Molarity क्या होनी चाहिए? 1m होनी चाहिए. उसी तरह से H plus का concentration क्या होना चाहिए? It must be what? 1m, right? What should be the pressure of H2? That is what? 1 bar, right? ठीक है ना? So these are the conditions which you have to take. तो अब यहां पे देख लो, in this case basically what this is what we have to find, E naught mg plus 2 to what? Mg, right? ठीक है. Suppose that value is what? Let's take it x, right? And we know for SHE, E naught is basically we have consider it as what? 0.0 volt, right? ठीक है. So बस अब इस नेट रिएक्शन को लिख लो. So Mg solid plus 2H plus aqueous, that gives you Mg plus 2 aqueous plus H2 gas. और इस सेल के लिए जो E naught सेल होगा, right? That will be what? E naught cathode माइनस E naught एनोड, राइट? ठीक है. बस यहां पे देखो माइनस, वैसे तो E naught सेल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? सो यू कैन राइट इट ऑल्सो E naught सेल एज व्हाट? E naught कैथोड एंड प्लस E naught एनोड. सो what is the difference between these two formulas, right? I hope you know, just I am reminding you. कैथोड पे देखो क्या होता है? रिडक्शन. तो रिडक्शन है तो इसका तो आपको SRP ही लेना है. एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. सो व्हेन यू आर टेकिंग दिस, ये तो SRP ही है आपका. व्हेन इट इज प्लस, तो दिस इज व्हाट? योर SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. माइनस साइन करने का मतलब क्या है? कि दिस इज ऑल्सो SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट? SRP, दैट इज व्हाट? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? ठीक है. सो बस अभी क्या करना है हमें, देखो इसको तो मैं हटा रहा हूं, राइट? सो दिस विल बिकम व्हाट? योर देखो E naught, that is what? your H plus, and this is what? your H2 minus E naught Mg plus 2 to what? Mg, right? And E naught cell, EMF of the cell, voltmeter की रीडिंग से पता चल जाएगा हमें, right? So we know this, and this is what? your 0, right? So from here we can say that E naught Mg plus 2 Mg is nothing but minus of E naught cell.
and that will be the SRP, right? So I hope this point is clear to all of you, right? करना क्या आपको SHE से कनेक्ट करना है, and SHE का तो SRP 0 है, right? इसका जो SRP होगा वो E0 सेल जो वैल्यू ये वोल्ट मीटर की रीडिंग देगा बस वहां पे एक नेगेटिव साइन लगा देना है, दैट्स इट, राइट? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंड दिस इज हाउ वी created that particular table, right? Electrochemical series जो आपने देखा होगा, right? Fine. We are moving to the next question now. Arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts, right? So for that you should know reactivity series, right? So reactivity series एक बार देख लेते हैं, right? So this is what LiK. So there is a way to remember also, and I would recommend you to remember, right? So this is what Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, राइट? सो दिस इज व्हाट, इसको याद करने का तरीका देखो, दे आर मल्टीपल, यू नो, आई एम श्योर कि और भी बहुत सारे ऐसे वेज होंगे जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, राइट? ठीक है ना, वेनेबल सर्च. आई हैव वन वे, द अल्टीमेट गोल इज व्हाट टू रिमेंबर दिस, राइट? सो देखो ये क्या है, दिस इज व्हाट ले के 12 सरक का नाम मांगे अली मंसूर जनाबे क्रूर. ने का कोई सेंस नहीं यहां पे, फेंकी, राइट? दिस इज Fe+2, राइट? ये ध्यान में रखना, फेंकी. CD कॉम्पैक्ट डिस्क, कोई, राइट? नीचे सुनो प्रभात है. हाइड्रोजन यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस पॉइंट, है कोई, आइए आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित. ब्रह्मानंद पंडित, और का कोई सेंस नहीं है. सो दिस इज व्हाट, इसको थोड़ा सा साइड भी कर ले. सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ और हियर. और कलावती लाई, लाई का अगेन कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. दिस इज व्हाट सोना, गोल्ड, symbol is AU, and F is what free, and this is what May, right? So this is what, this is the way to remember what the reactivity series. And once you remember reactivity series, you know, you can solve many questions. Careful रहना एक चीज, यहाँ पे Fe+2 है, right? And this is also what CO+2. CO+3 will come somewhere here, right? I'm giving you a task, just go and see in NCERT where Fe+3 is there, right? ठीक है ना? So it is coming somewhere after H. It's your exercise, right? And let us know also in the comment box, right? That where Fe+3 is, right? Anyway, so this is the way to remember what this reactivity series. Now, once you see the question, aluminium, Cu, Fe, Mg, and Zn, right? तो इसको आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है in the increasing order of what? Reactivity series. तो सबसे पहले देखो कौन आ रहा है? मैग्नीशियम. So first magnesium is coming. देखो मैग्नीशियम के बाद क्या आ रहा है आपका? एल्यूमिनियम. So then aluminium is coming. तो मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. After that what is coming? So Zn, Fe, and what? Cu, right? So it is what? Zinc, right? And then Fe. This Fe will go into what? Fe+2, right? ठीक है.
Fe, and then after that Cu. So the one which is coming first, right, reactivity series में जो पहले आ रहा है, right, वो क्या करेगा, बाकी सबको उसके corresponding salt से क्या कर सकता है, displace कर सकता है. Like if zinc is coming before iron and copper, zinc can displace iron and copper from their corresponding salts. जैसे एक रिएक्शन तो बहुत ही फेमस आपने पढ़ा होगा, Zn plus CuSO4 single displacement reaction, ZnSO4 plus what, Cu. So why zinc is able to displace copper, right? Why this zinc is able to displace copper? Because zinc is more reactive than what, copper, right? Okay. And if this reaction is taking place, that means what, कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो, this zinc is going into what, Zn plus 2 and plus 2 electron. And if you see here, E0 Zn plus 2 to Zn, that will come what, minus 0.76 volt, right? So if you see here, this is what, minus 0.76 volt, right? And the another reaction is what, Cu plus 2 is gaining 2 electron and giving you Cu, and for this E0 Cu plus 2 Cu is basically what, your plus 0.34 volt, right? So when you will calculate the E0 cell, right, you will get the value what, positive. E0 cathode minus E0 anode, both is what, SRP, standard reduction potential. So when you will calculate E0 cell here, right, that value is coming what, 1.1 volt, right? And this value is coming positive. If this value is coming positive, delta G0 क्या होगा, minus NFE0, right? So delta G0 will be negative. That means what, the process is what, is spontaneous. So in that way also you can do this particular question and you can look at this particular question. अभी के लिए तो अगर reactivity series याद है, you can easily say कि magnesium will be able to displace all from their corresponding salt. Aluminium, zinc, iron, copper को displace कर सकता है. Zinc, iron and copper को, and iron will be able to displace only copper among these 5 elements, right? So I hope this question is clear to all of you, right? Moving to the next question. चलिए. Can you store copper sulfate solution in a zinc pot, right? Store करने का मतलब क्या है? Store, अब store किया तुमने और वो react कर गया, तो store करने का purpose ही क्या था फिर, right? So we already saw this particular Zn plus CuSO4. So zinc pot will react with what? Copper sulfate, right? So the pot which we were using for the basically what? For the storage of CuSO4, it is itself reacting, right? So we cannot store, right? So we will not do that. So can you store copper sulfate solution in a zinc pot? No, because it will react and it will form zinc sulfate and copper, right? Fine. Moving to the next question. Now, given this standard electrode potential, right? And if you see here K plus 2K, that means what? Plus 2 0 reduce मतलब standard reduction potential दिया हुआ है आपको, right? तो standard reduction potential दिया हुआ है आपका E0 क्या दिया हुआ है? E0 K plus 2 K, and that value is given what? Minus 2.93 volt, right? 93 volt, right? Then E0 और क्या दिया हुआ है आपका? Ag plus 2 Ag, right? Ag plus 2 Ag, and that value is given what? 0.80 volt, right? Then E0 Hg plus 2 Hg, and that value is given what? 0.79 volt, right? And then E0 Mg plus 2 Mg, right? And that value is given what? Minus 2.37 volt. And the last one is what? E0 Cr plus 3 Cr, and that value is given what? Minus 0.74 volt, right? ठीक है. अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? Arrange these metals in their increasing order of reducing power. तो reducing agent कौन होगा? जो खुद क्या हो रहा हो? Oxidize हो रहा हो, right? तो यहाँ पर तो reduction हो रहा है, तो इसको उल्टा करके लिख लो आप इस तरह से. So in that case, what will happen? E0 K to K plus. ये जो था, they were what? Your SRP, standard reduction potential, उल्टा कर दिया. तो बस इसी के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा दीजिए. So in that case, it will become what? Your 2.93 volt, and it will become what? Your SOP, standard oxidation potential. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए
एंड इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चंस, राइट, वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा आपको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं. अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो ऐसे लिख लो और इसको उल्टा करके भी लिख लो, एंड देन यू गो टू द क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट. सो ई नॉट के इंटू के प्लस ई नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका एजी प्लस, एंड दैट विल बी व्हाट योर माइनस 0.80 volt, right? Then it will be what your E naught Hg plus 2. No. It will be, we have to reverse it now. So Hg and Hg plus 2. That is what your minus 0.79 volt. And then E naught Mg plus 2. And that will be what your plus 2.37 volt. And then last one is E naught Cr plus 3. And that value is what? Plus 0.74 volt, right? ठीक है. अब देखो, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, मतलब वो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट. तो इन सब में देखो, इन सब में हम लोग इनको कवर करते हैं, K प्लस Ag प्लस Hg2 प्लस Mg2 प्लस Cr प्लस 3, राइट. इन सब में सबसे ज्यादा SRP कहां पे है, अगर आप देखिए तो Ag प्लस का. दैट मीन्स व्हाट, इन सब में K प्लस Ag प्लस Hg2 प्लस Mg2 प्लस एंड Cr प्लस 3 में सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो रिड्यूस होने की है वो किसकी है, Ag प्लस की. दैट मीन्स Ag प्लस विल बी व्हाट, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग ऑल दीज 5, राइट. आपको निकालना क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, खुद क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइज हो रहा हो. तो ऑक्सीडाइज, तो आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है. तो K2K प्लस Ag2 प्लस, इन सब में अगर आप देखो SOP सबसे ज्यादा किसका है, पोटेशियम का सबसे ज्यादा है. इसका मतलब पोटेशियम के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, दैट मींस इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट. तो पहले K आ गया, देन उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन आ रहा है तुम्हारा, Mg. सो उसके बाद क्या आ गया आपका, Mg आ गया. आफ्टर दैट व्हाट इज कमिंग, सी हियर, क्रोमियम. सो आफ्टर दैट इट इज व्हाट योर क्रोमियम. देन Hg एंड Ag में अगर देखो तो माइनस 0.79 इज बिगर देन माइनस 0.80. नंबर लाइन में ऐसे देख लो जो जितना पॉजिटिव की तरफ हो. सो दैट मीन्स व्हाट, आफ्टर दैट इट विल बी व्हाट योर Hg एंड देन इट विल बी व्हाट योर Ag. सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ व्हाट, I mean their reducing power, right? So K will be the strongest reducing agent among all these 5, right? Okay. और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर आता तो वहां पे K प्लस Ag प्लस Hg2 प्लस Mg2 प्लस एंड Cr प्लस 3 का वही देख लेते किसका SRP ज्यादा है, राइट, ठीक है ना. तो पहले Ag प्लस आ जाता, उसके बाद Hg2 प्लस आ जाता, देन फिर क्या आ जाता, Cr प्लस 3, देन Mg प्लस 2 एंड देन K प्लस आ जाता, राइट. ठीक है. तो इस तरह से कर सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे हो. नहीं तो सिंपली ये वैल्यूज देख के एक बार देख लो कि जिसका रिड्यूसिंग, मतलब यहां पे क्या है SRP, जिसका SRP जितना नेगेटिव होगा, मतलब इसका अपोजिट करोगे वो उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी लिख सकते थे. इस पे यहां पे एक प्लस प्लस साइन लगा देते और फिर देख लेते, इसको ऐसे देख लेते, इस तरह से भी देख सकते हो, राइट, ठीक है ना. सो दोबारा लिखने में जो एक टाइम गया हमारा वो सेव हो जाता, राइट. So fine, I hope this question is clear to all of you. Moving to the next question. Consult the table of standard electrode potential and suggest the 3 substances that can oxidize ferrous ions under suitable conditions, right? ठीक है. So if you see Fe plus 2 electron, right, and that gives you what, Fe, right. तो इसका अगर E naught देखोगे, so it's E naught standard reduction potential. That is what, it is what, around 0.77 volt, right, minus 0.77 volt, right. So that means what, इससे ज्यादा किसी का भी अगर SRP हो, right, इससे ज्यादा अगर किसी का भी SRP हो तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, Fe+2 से ज्यादा होगी. और अगर वो खुद रिड्यूस होगा तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट, ठीक है ना. सो कंसल्ट द टेबल. इसके नीचे जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो, इसके नीचे कौन से आ रहे थे, तो सबसे एंड में ही चले जाते, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, राइट, ब्रोमीन हो गया. सो ऑल दीज आर व्हाट,
that can be used, right? Because it is coming below Fe plus 2 in the reactivity series, right? Okay, or you can say the SRP of them is what? More than what? Fe plus 2. So जैसे कि इसी का देख लेते हैं, E naught अगर तुम देखोगे F2 to F minus, so this value is what? Plus 2.87 volt, right? What does it mean? That means what? F2 के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, राइट? सो अगर ये इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये क्या करेगा? Fe+2 को फर्दर क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है, राइट? ठीक है ना? सो दिस इज द आंसर. दीज थ्री oxidizing agent you can use which will be able to oxidize Fe+2, right? Fine. So moving to the next question. Depict the galvanic cell in which the reaction Zn plus 2Ag plus gives you Zn plus 2 plus 2Ag takes place. Further, so which of the electrode is negatively charged? Carriers of the current in the cell, individual reaction at each electrode. So first let's see the third part, right? पहला तीसरा पार्ट देख लेते हैं. तो देखो यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा होगा? एनोड पे आपका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन. तो एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, so what will happen? Zn solid will give you what? Zn plus 2 aqueous and plus 2 electron, right? ठीक है. And then 2Ag plus aqueous plus 2 electron will give you what? 2Ag solid, right? And this will happen at what? Cathode. Reduction कहाँ पे होता है? Cathode पे होता है, right? ठीक है ना? So remember, reduction occurs at what? RAC. Reduction occurs at what? Cathode, right? ठीक है ना? कभी ट्रेन में सफर किया होगा तो एक तो कंफर्म टिकट होता है, एक वेटिंग टिकट होता है, और एक क्या होता है? RAC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, राइट? सो RAC रिडक्शन एट कैथोड, राइट? तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? एनोड पे होगा, राइट? ठीक है. चलिए, तो इसको अब एक बार नेट सेल रिएक्शन भी लिख लेते हैं अपन. तो ZnS प्लस 2Ag प्लस aqueous gives you Zn plus 2 aqueous plus 2Ag solid, right? So individual reaction at each electrode, वो तो हमने देख लिया, right? ठीक है. अच्छा, we know that ये जो galvanic cell है, basically in that anode is what? Negative. तो anode negative होता है, तो which of the electrode is negatively charged? Anode. तो ये जो जिंक वाला पार्ट है, दैट इज व्हाट योर नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, राइट? ठीक है. अब डेफिनेटली कैथोड विल बी व्हाट योर पॉजिटिव. अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यही रिवर्स हो जाता है, राइट? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तुम्हारा एनोड विल बिकम पॉजिटिव एंड कैथोड विल बिकम व्हाट योर नेगेटिव, राइट? फाइन. सो दिस व्हाट द फर्स्ट एंड द कैरियर ऑफ द करंट इन द सेल, राइट? सो आउटर मोस्ट सर्किट में इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम वेयर? इलेक्ट्रॉन तो कहां से कहां जाएगा? आउटर मोस्ट सर्किट में जिंक से Ag वाले हाफ सेल की तरफ, राइट? ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो कन्वेंशनली हम लोग क्या मानते हैं? अपोजिट मानते हैं, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो दैट विल बी व्हाट? इन आउटर सर्किट करंट विल फ्लो फ्रॉम व्हाट? Ag टू जिंक, राइट? ठीक है. एंड सेल के अंदर ऑफ कोर्स आयंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, राइट? ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मूविंग फर्दर, calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is what? 10, right? तो नॉस्ट इक्वेशन लगाना है हमें, तो लगाते हैं E H plus H2, right? एक बार रिएक्शन साइड में लिख भी लेते हैं अपन. So 2H plus 2 electron, right? And that gives you what? Your H2 gas, right? अच्छा, कई लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन जनरली होता है कि सर ये रिएक्शन क्या लिख सकते थे हम? H plus इलेक्ट्रॉन गिव्स यू व्हाट? हाफ H2. हाँ बिल्कुल, आप ये लिखो या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. E cell will not change, right? Why not change? I will show you that, right? पहले ऊपर वाला ही ले लेते हैं अपन. तो उसको अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? E naught. और वो क्यों चेंज नहीं होगा वो भी देख लेंगे अपन. E naught H plus H2, right? ठीक है ना? एंड माइनस क्या होता है? Because the temperature is not given, you have to take temperature about 298 Kelvin, right? ठीक है. So 0.0591, right? Divided by N, and this is what your log Q. And what will be Q? Partial pressure of H2, which is not given again, so you have to take it 1 bar,
सो ये 1 हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, राइट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर कर लो, तो इसको अपन 2 को बाहर ले आ सकते हैं और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। तो n भी लिख लो, लिख ही लो, n क्या हो जाएगा तुम्हारा, सो n विल बिकम व्हाट 2। तो ये वैल्यू तो 0 है, सो दिस इज व्हाट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इनटू, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट, का होल स्क्वायर। और इस 2 को बाहर ले लो तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। सो डायरेक्टली लॉग की प्रॉपर्टी से तो ये 2 कैंसिल आउट कर दे रहा हूं मैं, सो इट विल बिकम व्हाट माइनस ऑफ 0.0591, राइट, इनटू लॉग, और इसको अपन लिख सकते हैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का पावर -1, राइट, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का पावर -1, तो इसको बाहर ले लो तो माइनस 0.0591 इंटू माइनस ऑफ लॉग concentration of H plus, right? And what is this? If you see, this is nothing but what, pH. तो डायरेक्टली हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी निकाल लिया, 0.059 डॉट वॉट pH, and that is what your EH plus 2 what your H2, right? अब बस यहाँ पे pH की वैल्यू 10 पुट कर दो तो इट विल बिकम व्हाट योर माइनस 0.591, दैट व्हाट E। तो उस केस में जब pH 10 है तो पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, 0.591 आ जाएगा, राइट, माइनस 0.591। नाउ अगर हम ये ले रिएक्शन तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये जो बेसिकली अगर तुम यहां पे लोगे ना तो ये जो 2 वाला फैक्टर आ रहा था वो 2 कैंसिल हो जा रहा था, यहां पे अगर ये वाला रिएक्शन लोगे तो ये 1 आएगा, एंड इन दैट केस इट विल बिकम व्हाट log 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। करके देखना एक बार, ठीक है ना। ये तो 1 का पावर हाफ, मतलब 1 बार है तो 1 का पावर हाफ 1 ही रह जाएगा, राइट, ठीक है ना। सो इट विल बी व्हाट योर, यू सी हियर, इसको ऐसे लिख लो, बस मैं ये वाला पार्ट करके दिखा दे रहा हूं आपको, 0.0591 बाई 1 एंड log क्या हो जाएगा 1 अपॉन H प्लस। तो ये कुछ ऐसा ही बन गया, देखो तो यहाँ पे इट इज लाइक दिस 0.0591 log। सो दैट मीन्स व्हाट कि ये जो n है, दिस n और यहां जो पावर है, राइट, वो पावर एक्चुअली क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कॉम्पनसेट कर देगा। सो देयर इज नो नीड टू वरी कि सर ये रिएक्शन ले या ये रिएक्शन ले, राइट। यू टेक एनी रिएक्शन, द आंसर विल बी व्हाट सेम, बिकॉज इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एनीवे, राइट, intensive property, okay. So I hope this point is clear. Directly you just put the value of pH, even we have a formula also, so just remember the formula also, right, EH plus H2, right, minus 0.0591 dot pH। इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त एक चीज ध्यान में रखना कि टेम्परेचर इज व्हाट 298 केल्विन, राइट, ठीक है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस इज व्हाट 1 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। Calculate the standard cell potential of galvanic cell in which the following reaction takes place, right? We have to also calculate delta Rg naught and equilibrium constant. तो delta Rg naught तो क्या हो जाएगा? Delta Rg naught is nothing but minus NF E naught, right? Cell का निकालना है तो E naught cell ले लेंगे, right? And cell constant तो उसके लिए हमें क्या है, ये फॉर्मूला लगा दो, delta G is equals to क्या होता है, delta G naught plus RT ln Q। एक्चुअली यहीं से तो नॉस्ट इक्वेशन आया है, इन्हीं दो फॉर्मूलेस को यूज करके नॉस्ट इक्वेशन आया है। एक और फॉर्मूला यूज कर लो, डेल्टा जी इक्वल्स टू व्हाट माइनस NFE, राइट। तो एक तरह से इन 3 फॉर्मूलेस को यूज करके ही आपका नॉस्ट इक्वेशन आया है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0 एंड Q विल बिकम व्हाट योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम K हो जाएगा, राइट। सो बस यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस RT ln K, राइट। सो वंस वी हैव delta G naught, we can easily calculate the equilibrium constant K, right? And delta G naught के लिए हमें क्या चाहिए, we need what, E naught cell चाहिए, right? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, let's take the first one। जैसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, सो एनोड पे आपका होगा Cr2 है तो 2 ही ले लो, 2 Cr solid is giving you what 2 Cr plus 3 aqueous, and this is what plus 6 electron, right, ठीक है, and 3 Cd plus 2, 3
CD plus 2 plus 6 electron will give you what? 3 CD, right? ठीक है. जब नेट रिएक्शन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 Cr solid plus 3 CD plus 2 gives you 2 Cr plus 3 plus 3 CD, right? Now डाटा में E नॉट है तुम्हारे पास एंड E नॉट Cr plus 3 Cr. ये वैल्यू वो सीरीज में देख लो. सपोज दिस इज व्हाट x दिया हुआ है, राइट? एंड देन यू ऑल्सो गो एंड सी E नॉट CD plus 2 and CD, and suppose this value is given y, right? तो ये जो सेल है E नॉट सेल, वो क्या हो जाएगा? E नॉट सेल, बिकॉज बोथ आर व्हाट? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. तो E नॉट कैथोड, यहाँ पे कैथोड है ये, सो इट विल बिकम व्हाट योर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, राइट? सो इट इज व्हाट योर y minus x. Once you have E naught cell, simply y and x you can get. Even in exam it will be given, don't worry, right? You're not supposed to memorize all these, right? So E naught cell equals to what? Y minus x. Put the value of y, put the value of x, you will get the E naught cell. From there you have to calculate delta G naught. So delta G naught will be what? Minus NF E naught cell. So what is minus n? Number of electron, that is what? 6 minus 6 into Farad value कितनी आ जाएगी? 96487, right? Or you can take it 96500, right? That is your charge on 1 mole electron, and into E naught cell, that is what your y minus x volt, right? ठीक है. So from there you can calculate the value of what? Delta G naught, right? ठीक है. So this is basically what ये आपका डेल्टा G naught की वैल्यू यहां से आ जाएगी. Is it clear to all of you? Once you have delta G naught की यहां पुट कर दो, राइट? सो फ्रॉम देयर डेल्टा G naught की वैल्यू आपको आ गई है, राइट? सो दिस इज व्हाट योर माइनस RT. R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8.314, राइट? इनटू T. T कितना आ जाएगा? सो T इज गिवन. If it is not given, you have to take it what? 298 Kelvin, right? So 298, and this is what your ln K, right? So from there you can calculate K, right? यहाँ पे delta G naught, it will be what? इसका यूनिट किस में होगा? जूल पर मोल में, राइट? ठीक है ना? कैसे? ये तो क्या है तुम्हारे पास? 96487 कूलम, but this is what? Per mole of electron, right? तो कूलम पर मोल, and कूलम into volt, right? That will give you what? Joule. So it will become what? Your joule per mole. Put the value of here joule per mole, right? तो यहां पे देखो, इसका यूनिट तो जूल पर मोल है, इसका यूनिट क्या है? जूल पर मोल डॉट कैल्विन इनटू व्हाट? कैल्विन, राइट? तो यूनिट भी एक तरह से देख सकते हो. दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट वैल्यू ऑफ आर यू हैव टू टेक, राइट? अगर यही मान लो जूल की जगह कैलोरी रहता, इन दैट केस हमें क्या लेना पड़ता है? अप्रोक्सीमेटली 1.98, या फिर 1.98 ले लो यहां पे, नहीं तो 2 कैलोरी पर मोल कैल्विन ले लो, राइट? ठीक है. And if suppose delta G naught is given in what? Kilojoule, so convert into what? Joule, right? Fine. So I hope this point is clear to all of you. Second वाले questions में क्या करना है? Second वाला जो part है, same ही procedure है. वहां पे क्या हो जाएगा? Fe plus 2 is going to what? Fe plus 3. ठीक है. तो वहां पे this is what your oxidation, and Ag plus is going into what? Az, right? This is what your reduction, right? तो E naught cell क्या आ जाएगा? E naught cell will be what your simple E naught Ag plus to what? Ag minus E naught Fe plus 3 to what? Fe plus 2. ठीक है. सो ये आपका आ जाएगा E naught. ये कैथोड पे रिएक्शन है, और एनोड पे क्या बन रहा है? Fe plus 2 is going to what? Fe plus 3. But you are taking SRP, that's why there is a negative sign, right? So E naught यहां से ये टेबल से ये वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू निकाल लो, राइट? And once you get these two value, you will get the E naught cell. Put the value of E naught cell here. N की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? अब ये थोड़ा सा N की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? तो N की वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट? Fe plus 2 to Fe plus 3, that is going. So it is what? 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, and Ag plus is gaining what? 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. F आपके पास पता है 96487. E naught cell आपने निकाल लिया यहाँ से. that will give you delta G naught. delta G naught को फिर से यहाँ पे पुट कर दो, माइनस RT ln के. R की वैल्यू 8.314 ले लो, T 298 Kelvin. From there you can calculate what? Equilibrium
constant, right? So I hope you understand the procedure now, right? Okay, now we are moving to the next question. Calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place, right? ठीक है, तो ये हमें पता करना है. E नॉट सेल आपका दिया हुआ 1.05 वोल्ट. तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली, पहले तो ये रिएक्शन लिख लो, राइट? क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगा? सिंपल, तो हमें ई सेल निकालना है, राइट? ठीक है ना, हमें ईएमएफ ऑफ द सेल ई सेल निकालना है. तो नॉस्ट इक्वेशन लगा लो. तो नॉस्ट इक्वेशन के लिए क्या करना है हमें? नॉस्ट इक्वेशन के लिए वी हैव टू, ई सेल के लिए क्या करना होगा? देखो, ई नॉट सेल विच इज गिवन minus, if temperature is not given you have to take it what, 298 Kelvin, right? So simply directly we लिख सकते हैं 0.0591 divided by n, and this is what your log Q. देखो एक चीज, नॉस्ट इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या है, E cell, you can use it for half cell also, right? ठीक है ना? So this is what your E naught cell minus RT by NF, and this is what ln Q. तो जब तुम लॉन ले रहे हो यहां पे, तो दिस इज व्हाट RT बाई NF है. इसी को थोड़ा सा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं. सिंप्लीफाई नहीं कहेंगे, एक तरह से लॉन की जगह लॉग ले लिया. तो व्हेन यू विल टेक लॉग, 2.303 का फैक्टर आ जाएगा, RT बाई F into N, and this will be what your log Q. And you see this particular value, जब आप 2.303, R की वैल्यू क्या रखोगे? R की वैल्यू 8.314 रख दो. टेम्परेचर इज व्हाट, 298 केल्विन, एंड फैराड की वैल्यू 96487 रख दो. व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यू विल गेट व्हाट, 0.059, राइट? सो दैट वी हैव पुट हियर minus 0.0591, right? So whenever you are taking 0.0591, that means to check, one is what, temperature is 298 Kelvin, that is the one thing, and the second thing is what, it is log, not ln. So you have to be a little careful while using this particular equation, right? After that simple है, E नॉट सेल आपको दिया हुआ है. अब हमें N और Q पता करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शंस लिख लो, राइट? तो रिएक्शंस लिखने के लिए पहले तो क्या करेंगे, Ni इज गोइंग टू व्हाट, अगर देखो साइड में लिख ले, लेट्स यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो यहां पे Ni है तुम्हारे पास, राइट? Ni solid is going to what, Ni plus 2, and this is what, plus 2 electron, right? ठीक है, so ये हो गया, and 2 Ag plus 2 electron giving you what, 2 Ag. So from here we can say that the number of electrons involved here is what, 2, right? और Q क्या हो जाएगा? तो नेट रिएक्शन लिख लो एक बार, इसको एक्वस कर दो, इसको सॉलिड कर दो, इसको भी एक्वस कर दो. तो नेट रिएक्शन वही हो जाएगा, Ni solid plus 2 Ag plus aqueous gives you Ni plus 2 aqueous and plus 2 Ag solid, right? ठीक है. So from here we can easily say it is what, E naught cell minus 0.0591 divided by N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है, राइट? log Q क्या होगा, रिएक्शन कोसेंट. तो इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड है, तो इसको तो कंसीडर करना नहीं है अपने को, राइट? तो कंसीडर किसको करना है, Ni plus 2 का कॉन्सेंट्रेशन. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni plus 2 divided by concentration of Ag plus का square, right? So this is what concentration of Ag plus का square. Concentration of Ni plus 2 is given, right? That is what, 0.160, and concentration of Ag plus is also given 0.002. Put the value. E naught cell ये तो दिया ही हुआ है आपको 1.05 वोल्ट. मान लो अगर नहीं दिया रहता E naught cell, तो E naught cell निकाल भी सकते थे, राइट? यहां पे क्या करना पड़ता हमें, इसका तो E naught पता ही है, Ni plus 2 to Ni, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल SRP नहीं है तो टेबल से देख सकते हैं, और इसका भी E naught अपने को Ag plus 2 Ag, right? So E naught cathode minus E naught anode, because both are SRP. From there you will get what, E naught cell, right? So यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने दे दिया minus 0.0591 divided by 2, and this is what log Ni plus 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.160 divided by Ag plus का कॉन्सेंट्रेशन 0.002 का क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर. Put the value, you will get the value of E cell, right? So this is the way
to calculate such questions, right? Or to get the answer of such questions, right? Using Nernst equation. Nernst equation में बस एक बार रिएक्शन लिख लोगे तो n का आइडिया लग जाएगा, राइट? बस यहीं पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और यहाँ पे Q एक बार नेट रिएक्शन से Q लिख लोगे, देन इट इज व्हाट क्वाइट इजी, राइट? और हो सकता है ई नॉट सेल डायरेक्टली ना देके आपको हाफ सेल का एसआरपी दे दे, तो वहां से आप सेल का कंप्लीट सेल का एसआरपी निकाल सकते हो, राइट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. Write the Nernst equation and EMF of the following cell at 298 Kelvin, right? ठीक है. So basically what, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको डायरेक्टली भी अपन लिख सकते हैं, राइट? ठीक है, 298 केल्विन पे ही है, तो नर्स्ट इक्वेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले वाले पार्ट का ही करते हैं, राइट? तो फर्स्ट वाले पार्ट का कर रहे हैं अपन, राइट? बाकी एक और कर लेंगे. सो पहले फर्स्ट पार्ट का कर लेते हैं अपन, राइट? या कर ही लेते हैं, चलो. सो mg है आपके पास, mg सॉलिड इज गोइंग टू व्हाट, mg +2, राइट? एंड +2 इलेक्ट्रॉन aqueous, right? And next one is what your, क्या है आपका, Cu+2 aqueous +2 electron is giving you what, Cu solid. तो net cell reaction आपका ये मिल जाएगा, right? So what will be that, Mg solid plus Cu+2 aqueous giving you Mg +2 aqueous and plus Cu solid, right? ठीक है. Now you know E नॉट, मान लो Mg +2, Mg का क्या है आपका X है, that you can refer again that particular table and from there you can get E नॉट Cu +2, Cu का कितना है, suppose this value is Y, right? 0.34 वोल्ट के आसपास होता है. This is what, -2.87. Again, I am saying in the question it will be given, don't worry, right? So just I am taking XY. E naught cell कितना हो जाएगा? So this will be what your E naught cathode minus E naught anode. So it will be Y minus X. Now you have to apply the Nernst equation. तो Nernst equation के लिए अपन क्या करेंगे? E cell is equals to what? E naught cell minus, because the temperature is 298 Kelvin, right? So we can take 0.0591 divided by N. How many electrons are involved here? 2 electrons are involved. So divide by क्या कर दो आप 2, and then it is what your log Q. What is Q? So Q solid तो लेंगे नहीं. So concentration of Mg +2 upon concentration of Cu +2. What is the concentration of Mg +2? That is what, 0.001 divided by concentration of Cu +2. That is what, 0.0001, right? ठीक है. तो अगर ध्यान से देखो तो ये 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, तो ये 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट? सो इट विल बी व्हाट योर सिंपल y minus x and minus of 0.0591/2 आ जाएगा, राइट? दैट विल गिव यू ई सेल, राइट? तो इसी तरह से इसी प्रोसीजर को हमें फिर से रिपीट करना है, राइट? बाकी के लिए तो करते हैं. इसको मैं हटा रहा हूं, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया अपना, राइट? इसको भी हटा देते हैं अपन, या चलो इसी को हटा ही देते हैं, फिर से कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, राइट? तो सेकेंड वाला पार्ट को देखो क्या हो रहा है. अब डायरेक्टली भी थोड़ा कर सकते हैं. Fe is going to what, Fe+2. Let's take some different color. Fe is going to what, Fe+2, राइट? मतलब नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो Fe+2 क्या आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा, राइट? मतलब Q में वो ऊपर आएगा, राइट? तो डायरेक्टली लिख लेते हैं. E cell is equals to what, E naught cell minus 0.0591 divided by n. n को भी देखेंगे हम लोग, log Q. Q में Fe+2 तुम्हारा क्या आएगा, ऊपर में आएगा. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 डिवाइडेड बाई, अब यहां पे नीचे में क्या आएगा, H+ इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? सो यू सी हियर H+ इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? तो Fe इज गोइंग टू व्हाट, Fe+2. Fe is going to what, Fe+2. So it will lose 2 electron. 2H+ will gain 2 electron and that will give you what, your H2, right? ठीक है. And इनको जब तुम ऐड कर दोगे तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हियर इज व्हाट, 2. ऊपर में क्या आ जाएगा, Fe+2. उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 विच इज व्हाट 1 बार हियर. Fe सॉलिड को तो लोगे नहीं, और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, राइट? एंड व्हाट इज ई नॉट सेल? तो ई नॉट सेल के लिए ई नॉट
कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ई नॉट कैथोड तो जीरो ही हो जाएगा, राइट? और ई नॉट एनोड क्या हो जाएगा? सो दिस व्हाट जीरो माइनस ई नॉट ऑफ व्हाट Fe प्लस 2 टू Fe, तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट? जो भी है यहाँ पे ई नॉट Fe प्लस 2 प्लस Fe, मतलब इट्स SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उस वैल्यू को लो, दैट विल गिव यू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.0591 बाई 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 2 कितना दिया हुआ है? 0.001. सो दिस इज व्हाट 0.001. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज व्हाट 1 बार एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 स्क्वायर, राइट? जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू, राइट? ये 10⁻³ आ जाएगा, -3 को बाहर ले लो, राइट? तो log 10 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, राइट? सो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट ई सेल, इट्स वेरी इजी, राइट? चलिए थर्ड वाला भी कुछ वैसा ही है, Sn इज गोइंग टू व्हाट Sn प्लस 2, तो क्या चेंजेस आ जाएंगे, राइट? क्योंकि राइट हैंड साइड में तो सेम ही रिएक्शन है, राइट? सो द ओनली चेंजेस विल बी व्हाट, देखो ये वाला पार्ट जो है आपका, दिस इज व्हाट Sn इज गोइंग टू व्हाट Sn प्लस 2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो चेंजेस कहाँ कहाँ आ जाएंगे? देखो चेंजेस एक तो यहाँ आ जाएगा आपका, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे Fe प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा? Sn प्लस 2 आ जाएगा, राइट? Sn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी, राइट? क्योंकि इस साइड तो सेम ही चीज हो रही है, राइट? ठीक है, अच्छा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर्स यहाँ पे H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 तो 1 बार है, राइट? Sn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.050 है, राइट? तो बस इसको चेंज करना है अपने को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हियर अगेन व्हाट 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। Sn प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन ले लो, दैट इज व्हाट 0.050 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट इज व्हाट 0.020 का क्या कर लो? स्क्वायर कर लो, राइट? एंड एक चीज यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगी? ई नॉट सेल, because E naught cell will become what? Your E naught cathode, which is nothing but H plus H2 minus E naught anode, that is what your Sn plus 2 to what? Sn, right? This value is what? 0 SHE, standard hydrogen electrode है, तो minus of E naught Sn plus 2 to Sn, इसका SRP यहाँ पे put कर दो and then you can easily calculate the value, right? Okay, ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट भी देख ही लेते एक बार, क्या हो रहा है यहां पे देखते हैं। Br माइनस इज गोइंग टू व्हाट? Br2, राइट? जो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, कैथोड होता है, राइट? तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सो Br माइनस ऐसे देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये? 2Br माइनस इज गोइंग इनटू व्हाट? Br2, राइट? लिक्विड, एंड दैट इज गिविंग यू व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? और इस पोर्शन में क्या हो रहा है? तो दैट इज व्हाट 2H plus 2 electron and that is giving you what? Your H2 gas, right? ठीक है, नेट रिएक्शन लिख लो, तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2Br माइनस aqueous plus 2H plus aqueous, that will give you Br2 liquid plus H2 gas. अब E सेल निकालना है हमें, तो E सेल इज इक्वल्स टू व्हाट? E नॉट सेल। E नॉट सेल क्या हो जाएगा? E नॉट कैथोड जो 0 है माइनस E नॉट एनोड, राइट? तो 0 माइनस E नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन पोटेंशियली तो लेना है, तो Br2 टू Br माइनस 0 टू -1 रिडक्शन, राइट? तो ये आ गया, ये वैल्यू आप टेबल से उठा लो, राइट? माइनस ये तो E नॉट सेल आ गया माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n। n कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो 2 आ गया। लॉग में Q, लिक्विड का तो लेंगे नहीं, सॉलिड लिक्विड का नहीं लेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 दैट इज व्हाट 1 बार, तो ऊपर में तो क्या आ गया आपका? 1 आ गया, और नीचे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस का स्क्वायर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस? 0.01, राइट? 0.01 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है? 0.03, तो 0.03 का 0.03 का स्क्वायर, राइट? ठीक है, जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू, यू विल गेट द ई सेल। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड आई एम श्योर, बस एक बार रिएक्शन लिखना आप सीख जाओ, ठीक है ना? एक बार रिएक्शन लिखना सीख जाओगे ना, सो इट्स क्वाइट इजी। फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, आपको n का आइडिया लग जाएगा, आपको Q का भी एक्सप्रेशन पता चल जाएगा जब नेट रिएक्शन लिख लोगे। तो हाफ रिएक्शन से आपको n का आइडिया लग जाएगा, नेट रिएक्शन से आपको Q का आइडिया लग जाएगा। आफ्टर दैट तो बस सिंपल
इट्स वेरी सिंपल, राइट? ठीक है, तो इस तरह से चलोगे तो आसान लगेगा, राइट? और एरर्स के चांसेस कम होंगे। तो इन केस इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, राइट, सो डोंट अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, राइट? फर्स्ट राइट द रिएक्शंस, वंस यू विल बिकम कंफर्टेबल, राइट, तब तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The cell in which the following reaction occurs, 2Fe plus 3 plus 2I minus 2Fe plus 2 plus I2 has E naught cell दिया हुआ है आपको. Calculate the standard Gibbs energy and equilibrium constant for the reaction, right? तो E naught cell दिया हुआ है, तो अगर standard delta G naught निकालना है तो क्या हो जाएगा? This is what your minus NF E naught cell, right? अब N की बात करते हैं तो N, अब देखो डायरेक्टली भी देख सकते हो कि Fe प्लस 3 से प्लस 2 मतलब रिडक्शन हो रहा है, और कितना गेन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, बट 2Fe प्लस 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। अगर देख के अगर नहीं लग रहा है तो रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो 2Fe प्लस 3 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज गिविंग यू व्हाट? 2Fe, राइट? एंड 2I माइनस is giving you what? I2 and plus 2 electron, right? तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कहां पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। ये वाला रिएक्शन कहां पे हो रहा है? कैथोड पे। रिडक्शन कैथोड पे, ऑक्सीडेशन एनोड पे, राइट? ठीक है। सो एनीवे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड हियर? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो 2 हो गया इनटू 96487 एंड इनटू ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है आपको 0.236 वोल्ट, राइट? ठीक है ना? एंड ये कितना है? कूलम पर मोल, राइट? सो दिस विल बी व्हाट योर -2 इंटू 96487 इंटू 0.236 and this will become what your joule per mole, right? That is what your delta G naught. So this will be what your delta G naught. बस इसको क्या करो आप? मल्टीप्लाई कर दो, right? Now after that अगर आप देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको, so delta G naught is equals to what? -2.303 और 2.303 ले रहे हैं तो ln नहीं आएगा, log आएगा, right? So this is what your RT and this is what your log K, right? R की वैल्यू 8.314 ले लो, टेम्परेचर 298 केल्विन है, right? From there you can calculate the value of K, that is what? Equilibrium constant, right? ठीक है। So and delta G naught तो आपको यहाँ से पुट कर देना है, क्लियर है? So I hope this is what clear to all of you, right? Next. In the button cell widely used in watches and other devices, the following reaction takes place. Determine delta Rg naught and E naught for the reaction, right? So once you have E naught for the reaction, you can easily calculate the delta Rg naught. तो पहले तो reaction एक बार लिख लेते हैं, देखो। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा? Zn solid is going into what? Zn solid is going into what? Zn plus 2 aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? ठीक है। और इसका SRP E naught Zn plus 2 to Zn, right? And this is what -0.76 वोल्ट होता है, right? But let's take it as what? इसको अपन x ले लेते हैं, ठीक है? वो डाटा दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, but it will be given, don't worry. नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा? So this is what your Ag2O solid plus H2O liquid and plus 2 electron and that will give you, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है? and that will give you what? आपको ये देगा 2Ag solid and plus 2OH minus, right? So जब इनको ऐड करोगे आप, so you will get the net cell reaction, right? तो यहाँ पे जो इसका E naught होगा, that is what your Ag2O to Az, right? And this value is suppose Y. So definitely E naught cell will be what? E naught cathode. ये रिएक्शन कहाँ पे होगा? कैथोड पे। रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, तो E naught cathode, that is what? Y minus X. And once you have E naught cell, you can calculate what? Delta G naught. So delta G naught will be what? Your minus, how many electrons involved? 2. So 2 into F. F is what? 96487 into Y minus X. And this is what? Joule per
So this is the value, right? And these two values will be given, right? Just you have to put the value and you will be able to calculate what standard gives free energy change, right? Fine. Moving forward to the next question. In a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire, right? We know that 1 mole electron पे जो charge होता है, 1 mole electron पे, that charge is what? 96487 कूलम होता है, जिसको approximately आप 96500 कूलम ले लेते हो, राइट? ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना बहुत सिंपल है. व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड Na की वैल्यू ले लो 6.022 इंटू 10⁻23. व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू यू विल गेट दिस, राइट? इतनी बातें तो हमें पता है, राइट? अब इसी को यूज कर लेना है थोड़ा सा. 0.5 एम्पियर, यू नो दैट Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू T, राइट? सो I क्या है आपके पास? करंट, दैट इज व्हाट 0.5 एम्पियर, एंड टाइम है 2 आवर्स, तो 2 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो 60 इंटू वॉट 60, राइट? और ये आ जाएगा आपका एम्पियर डॉट सेकेंड, दैट इज नथिंग बट कूलम में आ जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट द कूलम, राइट? तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट योर 3600 कूलम. अब ये 3600 जो कूलम है बेसिकली, राइट? ठीक है ना? How many electrons are responsible for this 3600 coulomb? So if you see, for 96,487 coulomb, how many electrons are responsible? 6.022 into 10⁻23 electrons are responsible for that. So for 3600 coulomb, how many electrons are responsible? So 6.022 into 10⁻23 into 3600 divided by 96487, and this is basically what your number of electron which will be responsible for this much amount of charge, right? ठीक है? So I hope this is clear. We are moving to the next question. Define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte for an electrolyte. Discuss their variation with concentration. ठीक है? तो देखो, वैसे तो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट मैं एक बार समझा देता हूँ. और मान लो डेफिनेशन को रटना नहीं है, यू कैन ईजिली फ्रेम द डेफिनेशन, राइट? कैसे देखते हैं उसको. तो सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ से होती है? अगर बहुत बेसिक से चलो एकदम से, तो अपन क्या लिखते हैं? अपन लिखते हैं रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट योर आर रो इंटू एल बाई ए, राइट? Right. So this is what the length between the two electrodes, right? And this is what the area of cross section. Rho is what resistivity, R is what resistance. इसी को उल्टा कर दो तो 1 by R क्या हो गया तुम्हारा? That is what 1 by rho into A by L, right? 1 by R is what? Resistance का उल्टा क्या हो जाएगा? Conductance. 1 by rho resistivity का उल्टा क्या हो जाएगा? Conductivity, right? And that's the symbol for that is what? Kappa. So this is what kappa into A by L. और कप्पा को इधर ले लो, ठीक है ना? बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कप्पा, राइट? ठीक है ना? सो कप्पा, सो कप्पा विल बी व्हाट? G into L by A, and this is nothing but cell constant, right? जिसको हम लोग G star भी बोलते हैं. So it will be what? GG star, ठीक है? So कप्पा is a star, GG star, ठीक है? So ये कप्पा हो गया. अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि जो ये कपा है, कंडक्टिविटी है. अब इसी को देखना ध्यान से. कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल कब होगा? जब L की वैल्यू भी 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो? आपका 1 हो. इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, राइट? सो दिस इज व्हाट यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो और इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने कितने यूनिट डिस्टेंस पे डाल दिया, राइट? ठीक है ना? तो यूनिट डिस्टेंस पे डाल दिया, मान लो ये यूनिट डिस्टेंस है, राइट? और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A इज ऑल्सो व्हाट? 1. सो इन दैट केस अभी क्या हो जाएगा? एक तरह से यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हो, राइट? नहीं, इसको यूनिट वॉल्यूम. तो इस यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा दैट इज नथिंग बट व्हाट? कपा, राइट? सो व्हाट इज कपा? बेसिकली व्हाट? कपा इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन वेयर द इलेक्ट्रोड्स, their cross sectional area is 1
यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेपरेटेड बाय व्हाट, यूनिट डिस्टेंस, और उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी बोल देंगे, राइट। नाउ यू थिंक इफ वी आर वैरिंग द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर सपोज डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने का क्या मतलब है कि डाइल्यूशन है, मान लो कि अभी अगर तुमने इसको डाइल्यूट किया तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो इसका मतलब जब जैसे जैसे तुम कॉन्सेंट्रेशन मतलब डाइल्यूशन करोगे, सो डाइल्यूशन के साथ कपा क्या होगा आपका, कपा की वैल्यू घटेगी, कपा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस, राइट, द नंबर ऑफ आयंस in the solution will what, decrease, right, ठीक है। so this is basically what your variation with concentration, और dilution का क्या मतलब है, concentration को कम करना। how you will you concentration को कम कैसे करेंगे, आप उसमें और solvent ऐड कर दो, राइट, तो volume of solution बढ़ जाएगा, number of moles of solute तो सेम ही रहेंगे, so concentration will what, decrease, right, ठीक है। चलिए अब what about molar conductivity, right, तो molar conductivity का definition कैसे है वो भी देखते हैं थोड़ा। तो मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा बस इसको चेंज करना है, राइट, थोड़ा सा चेंज करना है, राइट, इसको। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या करना है हमें, वो कंडक्टेंस किसका है, तो एक तो पहले मैंने क्या लिया, एक इलेक्ट्रोड लिया, राइट, इसके सामने एक और, राइट, सो वन इज कैथोड वन इज एनोड, राइट, दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स लिए, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, राइट। ऐसे मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया अभी 1 है, राइट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं, ध्यान से सुनना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो अभी 1 है, ठीक है, रटना नहीं है इसको, सिंपल, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1, और अभी जो यूनिट डिस्टेंस पे, ये यूनिट डिस्टेंस पे एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1, राइट। अब मैंने क्या किया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट डिस्टेंस को मैंने मेंटेन रखा, मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं बढ़ा रहा हूं, और किस तरह से बढ़ा रहा हूं, कैसे बढ़ाऊंगा मैं, इसको ऊपर ले जाओ, राइट, और इसको तब तक ऊपर ले जाऊंगा मैं जब तक इनके बीच में क्या ना हो जाए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ना आ जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, जब तुम्हारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते जाओगे तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम बढ़ेगा, वो वॉल्यूम तब तक बढ़ाना है जब तक उस वॉल्यूम के अंदर तुम्हारा क्या ना आ जाए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो अब तो ये यूनिट वॉल्यूम रहा नहीं, अब तो इसका क्रॉस यूनिट वॉल्यूम नहीं रहा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे क्या हो गया, ए, यहां पे भी क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया आपका, ए हो गया, राइट, ठीक है ना। बट ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कुछ इस तरह से है, दैट इज व्हाट केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस, कि द वॉल्यूम which is in between these two electrodes contains 1 mole of electrolyte, और उस केस में इसका जो G होगा, इसका जो G होगा, that is what your molar conductivity। तो molar conductivity is nothing but the conductance of this particular setup where this area of cross section is A, area of cross section is A, separated with a unit distance, and that particular volume contains what, 1 mole of electrolyte, right, ठीक है। तो G क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था G की वैल्यू कितनी थी, दिस इज व्हाट योर कपा था इनटू व्हाट, L बाई ए था, A बाई एल था ना, A बाई एल था, सॉरी, तो इट वॉज व्हाट, कपा इनटू A बाई एल था, राइट, ठीक है ना, यही था, राइट। So G is equals to what, kappa into A by L, right? अब देखो ये G मोलर कंडक्टिविटी कब होगा, जब L आपका क्या हो, यूनिट हो, राइट, और A क्या हो आपका, सफिशियंट एरिया हो जिससे इसके बीच में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, राइट, ठीक है ना। सो दैट मीन्स व्हाट, कैन बी से द वॉल्यूम हियर विल बी व्हाट, A only, A cross sectional area into unit distance is what, 1, right? So this is what your kappa into V. V is nothing but A into L, right? ठीक है। And what is L? L here is what, 1, right? तो L अगर 1 है तो V की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, A की इक्वल हो जाएगी। बट ये V कोई भी V नहीं है,
This V is that volume which contains what? 1 mole of electrolyte. That's why we are calling it what? Molar conductivity, right? So molar conductivity is equals to what? Kappa dot V. Clear है? ठीक है? और भी formulas हैं इसके, right? So this is what kappa is what your conductivity, and V is that volume which contains 1 mole of electrolyte, right? And this is what your molar conductivity, right? Now you see, when we will dilute the solution, of course the volume will increase, right? So the volume is increasing and the kappa is decreasing, but this is what your more dominating factor. So that means what? Upon dilution we will say that lambda m molar conductivity क्या होता है? Increase होता है. तो जब आप dilution जब आप करोगे तो कपा की वैल्यू डिक्रीज होगी, बट मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, राइट? एंड डेफिनेशन, इसी ए को 1 कर दो और यूनिट डिस्टेंस पे, तो इस जो सेटअप है उसका जो कंडक्टेंस है वो कपा के इक्वल हो जाएगा, और इसी 1 को सफिशिएंटली बढ़ाते बढ़ाते इतनी दूर ले जाओ कि इसके बीच में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, तो उस सेटअप का जो कंडक्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी के. So that is the answer of this particular question. Definition तो खुद से भी frame कर सकते हो. Now you go and see the definition that is given in NCERT, and it will be quite easy for you to remember that definition, right? Fine. So we are moving to the next part. Suggest list of metals that are extracted electrolytically, right? So it's a very reactive metals, right? So very reactive metals like lithium, right? Sodium, potassium, right? Magnesium, aluminium, right? All these elements, you can say, the highly reactive metals, they can be extracted what? Electrolytically, right? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next. The conductivity of a 0.20 m, conductivity मतलब कपा की वैल्यू गिवन है, right? कपा दिया हुआ है आपको, एंड कपा कितना दिया हुआ है देखो. सो कपा इज गिवन 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, राइट? एंड द कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी इज गिवन, राइट? सो मोलैरिटी कितनी दी हुई है? मोलैरिटी इज गिवन, मोलैरिटी इज 0.20 m, राइट? ये दिया हुआ है आपको. अब वो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी का बहुत सारा फॉर्मूला है, राइट? वन फॉर्मूला इज व्हाट? कप्पा डिवाइडेड बाय सी, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन, बट दिस कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर मीटर क्यूब, ध्यान रखिएगा, राइट? वैसे जनरली कॉन्सेंट्रेशन किस में रहता है? मोल पर लीटर में दिया होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला इतना यूजफुल नहीं रहता है. तो एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, एंड द अनदर फॉर्मूला इज व्हाट? कप्पा अपॉन 1000 into m. Molarity in both the case it is what? Mole per liter. यहां पे कपा जो है आपका, that is what your Siemens centimeter inverse, and here kappa is what? Siemens meter inverse, right? So that's the difference. अगर मीटर में इनवर्स में दिया हुआ है कप्पा तो 1000 नीचे आ जाएगा, सेंटीमीटर में तो 1000 ऊपर में आ जाएगा. ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना? सेंटीमीटर अगर यूनिट में दिखे तो 1000 ऊपर, और मीटर में दिखे तो 1000 नीचे. रेस्ट एवरीथिंग विल बी व्हाट? सेम, राइट? तो बस यहाँ पे देखो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो लेमडा एम कितना हो जाएगा? तो दैट इज व्हाट? कप्पा, दैट इज 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई व्हाट? 0.20, राइट? तो वहां से आपका क्या आ जाएगा? लेमडा एम आ जाएगा, राइट? ठीक है ना? अब लेमडा एम का यूनिट कैसे निकालेंगे अपन, राइट? तो यूनिट कैसे निकालेंगे आप देखो. तो लेमडा एम हमने देखा था ना अभी कि दैट वाज व्हाट? कप्पा इनटू वी देखा था, हमने देखा था ना. तो कप्पा का यूनिट कितना होता है? सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और वी का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब. बट केयरफुल, ये ऐसा वैसा वी नहीं है, ये वो वी है जिसमें कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो इट इज व्हाट? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल. डोंट फॉरगेट दैट पार्ट, राइट? सो दिस विल बिकम व्हाट? योर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल inverse, right? So unit you can put it here, Siemens centimeter square mole inverse, right? So from there you can easily calculate what? Molar
conductivity, right? So I hope this question is clear to all of you. चलिए आगे बढ़ें. Consider the reaction this. Okay, what is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7? तो अगर 1 मोल को देखो तुम, तो 1 मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 6 मोल इलेक्ट्रॉन. 6 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. 1 मोल ऑफ Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 6 मोल इलेक्ट्रॉन. एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे वी नो दैट व्हाट इज द चार्ज? 96487 कूलम, राइट? So 6 mole electron means what? 6 into 96487 coulomb, right? So that will be the amount of charge that will be required to reduce 1 mole of what? Cr2O7 2 minus, right? Okay. So this is a very simple question. चलिए आगे बढ़े. The resistance of a conductivity cell containing 0.00 m solution at 298 Kelvin is R दिया हुआ है आपको. R की वैल्यू दे रखी है. कितना दिया हुआ है? 1500 ओम दिया हुआ है, राइट? ठीक है. और कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है. कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? मोलैरिटी. सो मोलैरिटी इज गिवन 0.001 m, right? What is the cell constant if conductivity of 0.00 m KCl solution at 298 Kelvin is this, right? तो कपा की वैल्यू दे रखी है आपको. सो कपा की वैल्यू दे रखी है आपको, दैट इज व्हाट? 0.146 into 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. सेल कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है. सेल कांस्टेंट मींस व्हाट? L/A, G स्टार. सो वी नो दैट कपा इज इक्वल्स टू क्या होता है? GG स्टार होता है, राइट? सो G क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, लेकिन R तो दिया हुआ है ना. तो G इज नथिंग बट 1/R. सो इट विल व्हाट? योर 1/1500, राइट? तो 1/1500 आ गया, राइट? एंड तो दिस इज व्हाट? ये आ जाएगा आपका ओम इनवर्स, और सीमेंस भी बोल सकते हो, इनटू G स्टार. G स्टार इज नथिंग बट वही सेल कांस्टेंट आपको निकालना है. एंड दैट इज इक्वल्स टू, कपा की वैल्यू दे रखी है आपको 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. तो G स्टार की वैल्यू आ गई विच इज नथिंग बट योर L/A. तो L/A अगर है तो यूनिट क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर इनवर्स में आना चाहिए, राइट? ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट योर 0.146 इंटू 10⁻³ G स्टार इंटू क्या कर दो? 1500 कर दो, राइट? एंड दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स. So this is what your cell constant, right? For this, तो cell constant आ गया आपका, ठीक है? Done. So this is a very again simple question. चलिए आगे बढ़े. Write the chemistry of recharging the lead storage battery, highlighting all the materials that are involved during recharging, right? So lead storage battery में क्या होता है? Anode पे. So anode is what your lead. So anode lead ही आपका. So this is what your Pb solid and plus Pb solid plus SO4 2 minus aqueous, and that is giving you what? PbSO4 solid and plus 2 electron, right? So this reaction is taking place at what? Anode, right? Cathode पे क्या होता है? A grid of lead packed with PbO2, right? ठीक है. And electrolyte is your what? Remember that statement is given in NCERT. It is what? 38% weight by weight H2SO4, right? ठीक है. So this is important. एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अभी रिएक्शन लिखने से आइडिया लग जाएगा, राइट? तो क्या क्या है? एनोड तो लेड है तुम्हारे पास. कैथोड क्या है? अ ग्रिड ऑफ एनोड, lead packed with what? PbO2. A grid of lead packed with PbO2, right? So it is what your basically PbO2 है आपके पास plus SO4 2 minus plus 4H plus, and that is giving you what? PbSO4 solid and plus ये आ जाएगा आपका
2H2O लिक्विड, राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर PbO2, यहाँ पे भी सॉलिड है, ठीक है। ये एक्वस हो जाएगा और इसको भी अपन एक्वस लिख सकते हैं। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो नेट रिएक्शन जो है लेड स्टोरेज बैटरी में, तो एक हो जाएगा आपका Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, राइट, एंड दिस इज व्हाट योर SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस 2 SO4 2 माइनस 4H प्लस, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2H2 SO4, राइट, एक्वस गिव्स यू 2 PbSO4 solid and plus 2H2O liquid, right, ठीक है। So this is the reaction that is taking place, लेकिन ये कब हो रहा है, जब आपका बैटरी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। It's a secondary battery, right? So discharging is possible, recharging is also possible, but when recharge will take place, ध्यान से सुनना, रिचार्ज जब होगा तो एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा था। रिचार्ज के केस में PbSO4 which was actually producing at anode will convert into what, PbS, ये रिचार्जिंग के टाइम में ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, एंड PbSO4 which was produced on basically cathode will convert into what, your PbO2, right, ठीक है ना, and again of course H2SO4 will generate also. Now one more important point, तो क्या क्या important point है लेड स्टोरेज बैटरी के हिसाब से, रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 जो यूज कर रहे हैं वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, दैट इज व्हाट 38% वेट बाई वेट, ठीक है। और तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखो कि अगर इस बैटरी से आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, so how many moles of H2SO4 will consume 2 mole, right? So per mole इलेक्ट्रॉन, 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए इस बैटरी के साथ, राइट, मतलब 1 फैराड चार्ज चाहिए आपको, राइट, 1 फैराड, so that means what, for that 1 mole of H2SO4 will consume. So this is also a very important point, right, which you should remember. In fact in JEE Advanced there you know a question came on this और वो इसी पे बेस्ड था, राइट, ठीक है। एनीवे वी आर नॉट गोइंग इन दैट टेरिटरी, राइट, बस इतना ध्यान में रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन जो तुम्हें चार्ज मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, 2 moles of H2SO4 is getting consumed. So for 1 mole of electron 1 mole of H2SO4 is getting consumed in this lead storage battery, and यहां पे ये क्या बोल रहा है, रिचार्जिंग, तो रिचार्जिंग के केस में, ये तो डिस्चार्ज का केस था, रिचार्जिंग के केस में यही उल्टा हो जाएगा, तो देयर इज अ लाइन आल्सो रिटन इन NCERT, PbSO4 you know produced at anode is converting into Pb and at cathode is converting into what, PbO2, right? So I hope this point is clear to all of you, right? Fine, we are moving to the next question. चलिए, the conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin has been determined at different concentration and the results are given below. तो conductivity आपको दिया हुआ है, right? In fact, तो conductivity की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.237 into 10⁻², क्योंकि into 10 स्क्वायर में दिया हुआ है, right? Concentration भी इसके दिया हुआ है, right? Now if you see basically what concentration भी आपका दिया हुआ है, right? ठीक है ना, चलिए, कैलकुलेट लैम्डा m फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्रॉ अ प्लॉट। तो लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं अपन, सो ये किस में दिया हुआ है, देखो तो सीमेंस मीटर इनवर्स में दिया हुआ है, राइट, तो मीटर इनवर्स में 1000 नीचे ऊपर लेंगे नीचे लेंगे, नीचे लेंगे, सो कपा अपॉन 1000 इनटू व्हाट, m, राइट। सो हर केस में लैम्डा m निकाल सकते हो, जैसे इस केस में मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, इस केस में जो लैम्डा m हो जाएगा दैट विल बी व्हाट, योर कपा, इस केस में कपा क्या हो जाएगा, 1.237 इंटू 10⁻², ठीक है ना, क्योंकि ये कपा इंटू 10⁻² है 1.237, तो कपा क्या हो जाएगा, 10⁻² को इधर ले जाओ फिर ऊपर ले जाओ, तो 1.237 इंटू 10⁻² सीमेंस मीटर इनवर्स, राइट, अपॉन 1000 इंटू m, मोलैरिटी इज व्हाट, 0.001, राइट। सो यहां से लैम्डा m आ गया, राइट। अब इसी तरह से लैम्डा m यहां भी निकाल लो, यहां भी निकाल लो, यहां भी निकाल लो, यहां भी निकाल लो, राइट, लैम्डा m आ गया। तो एक तो तुम्हारा लैम्डा m आ गया, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम्हें दिया हुआ है तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट, रूट c, राइट, रूट c, राइट, एंड एक बार रूट c आ गया तो लैम्डा m वर्सेस रूट c का ग्राफ ड्रॉ कर लो आप, राइट, तो लैम्डा m वर्सेस रूट c का ग्राफ ड्रॉ कर लो, राइट।
So this is what your lambda m and this is what root c, right? And that graph will come, straight line आएगा वो, right? So ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, इसी को आप एक्स्ट्रापोलेट कर दो, right? When you will extrapolate it, right? So it will cut at this point and यही जो point होगा वो तुम्हारा क्या होगा, lambda m naught. That is what molar conductivity at infinite dilution. देखा था हमने ना, molar conductivity जब dilute करोगे तो concentration क्या होगा, कम होगा. तो concentration जब कम हो रहा है, मतलब dilution कर रहे हो, तो molar conductivity बढ़ती थी, हमने देखा था अभी, right? So molar conductivity is increasing. और कितना dilute कर सकते हो आप, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन कर सकते हो. तो इन्फाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि उस पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, राइट? तो ये तो लैम्डा एम सी का ग्राफ वर्सेस रूट सी के साथ था, इसी को एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे तो लैम्डा एम नॉट आ जाएगा. क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूं आपको. आपके पास कपा दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यू जस्ट पुट हेयर कपा, यू पुट हेयर कॉन्सेंट्रेशन. बस एक छोटा सा केयरफुल क्या रहना, डायरेक्टली 1.237 यूज मत करना, राइट? यहां पे k इंटू 10 स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है, तो कपा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.237 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगी, राइट? क्लियर है? सो पुट द वैल्यू ऑफ कपा हियर, पुट द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन, यू विल गेट लैम्डा एम. तो सारे कॉन्सेंट्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें लैम्डा एम आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. देन यू हैव टू डू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन का रूट ले लो, इन सब का रूट ले लो, राइट? और फिर एक क्या करो, ग्राफ ड्रॉ कर लो, राइट? लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का, राइट? एंड दैट पर्टिकुलर ग्राफ विल कम ए स्ट्रेट लाइन. इसी स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये यहां कट करेगा. यहां कट करने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो almost, right? What does it mean? It means what? It is infinitely diluted. That's why the concentration is what? Zero, right? Okay. And there you will get what? Molar conductivity at infinite dilution. That is nothing but lambda m naught, right? So in this way, you will be able to calculate lambda m naught. I hope it is clear to all of you, right? Moving to the next question. ठीक है, ऐसे तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस क्या ही आएंगे, बट ठीक है, एक बार देखना, कर सकते हो. मोस्टली कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो बस, ठीक है. Suggest two materials other than hydrogen that can be used as fuels in fuel cell, right? So this is again two example, that is what, methane and methanol. Okay. So this is given in NCERT. Even you can use carbon monoxide also. So methane, methanol, right? Methanol, right? You can use carbon monoxide also. So दो ही बोल रहा है, and these two are in what? Written in NCERT, so you can go through this, right? ठीक है, simple question, straightforward, information based. आगे बढ़ रहे हैं. Conductivity of 0.00241 m acetic acid is this. तो कपा दिया हुआ है आपको. कपा की वैल्यू कितनी दे रखी है? कपा की वैल्यू दे रखी है 7.896 into 10⁻⁻5 Siemens centimeter inverse, right? ठीक है. And what is the molarity is given? Molarity is given 0.00241, right? Calculate its molar conductivity. Lambda m निकालना है. Siemens centimeter, सेंटीमीटर जैसे ही दिख गया यूनिट में कपा के 1000 ऊपर आएगा, ध्यान रखना. तो लैम्डा m क्या हो जाएगा आपका, कपा, कपा इज व्हाट, 7.896. तो 7.896 into 10⁻⁻5 into 1000 divided by molarity is what, 0.00241, and this is what, Siemens centimeter square mole inverse, right? So this is what your lambda m. अब once you get the lambda m, right, you can get the degree of dissociation. Alpha क्या होता है? Alpha is what, lambda m upon what, lambda m naught. Lambda mc upon lambda m naught will give you what, alpha. You have lambda m naught for acetic acid, this is what, 390.5. You calculate lambda m here. Lambda m upon lambda m naught will give you what, alpha. And for acetic acid, dissociation constant देख ही लेते हैं एक बार, c alpha square upon 1 minus alpha होता है, but एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार लिख के भी देख लेते हैं. So this is what your acetic acid, CH3COOH, right, aqueous, and that will break into, पूरा इक्वेशन भी लिख सकते हो, प्लस H2O लिक्विड लिख लो, CH3CO माइनस एक्वस प्लस H3O प्लस. तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ CH3CO माइनस एक्वस प्लस
H plus aqueous, and here the dissociation constant Kd और Ka, acid dissociation constant Ka भी बोल सकते हो. That is what your concentration of CH3CO minus into concentration of H plus and divided by concentration of what? CH3COOH, right? अब ये वाला पार्ट हमें थोड़ा सा देखना है, राइट? तो इसको नीचे ले आते हैं एंड ठीक है. अब देखो यहां पे बेसिकली दिस इज व्हाट, अगर ये C है तो दिस इज व्हाट 0 एंड दिस इज व्हाट 0. अब C into 1 minus alpha will give you C alpha and what? C alpha. So put the value, concentration of CH3CO minus C alpha, H plus C alpha divided by C into 1 minus alpha. C से C cancel out हो गया, तो यहाँ से आ गया C alpha square upon 1 minus alpha. C की वैल्यू पता है आपको, देखो concentration यहाँ पे, right? So this is what, ये क्या हो जाएगा आपका 0.00241 into alpha square upon 1 minus alpha. Alpha आपको यहां से आ जाएगा, put the value of alpha, you will get the value of acid dissociation constant, right? ठीक है, चलिए next question. Explain how rusting of iron is envisaged as setting off of an electrochemical cell. तो इसको एक image आई हैव जस्ट पुट एन इमेज, राइट? ठीक है ना, इससे थोड़ा समझना आसान हो जाएगा. तो देखो एक तरह से क्या होता है रस्टिंग में, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास आयरन है, आयरन विल कन्वर्ट इनटू व्हाट Fe+2 इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन एनोड पे होगा ये रिएक्शन, राइट? दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है, राइट? ठीक है. अब एनोडिक साइड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कैथोडिक साइड पे. कैथोड साइड पे क्या रिएक्शन हो रहा है तुम्हारा? O2 + 4H+. दिस एसिडिक मीडियम कहाँ से आ रहा होगा? तो देखो एटमॉस्फेयर में CO2 तो प्रेजेंट है, दैट विल डिसॉल्व इन ऑक्सीजन, राइट? सो दैट विल फॉर्म व्हाट? कार्बोनिक एसिड, व्हिच विल गिव यू H+. अदर ऑक्साइड्स आर आल्सो अवेलेबल, राइट? लाइक सल्फर के ऑक्साइड्स अवेलेबल है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अवेलेबल है, दैट कैन आल्सो प्रोवाइड H+. बट if the carbon dioxide तो है ही है present, right? So CO2 will give you what? H+, right? And +4 electron will give you what? 2H2O. So this particular reaction is taking place at what? Cathode, right? और ये रिएक्शन एनोड पे हो रहा है, दोनों को कंबाइन कर दो तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा, राइट? ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Fe+2 जो तुम्हारा बन रहा है, राइट? तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? देखो Fe है तुम्हारे पास सॉलिड, दैट इज गोइंग इनटू व्हाट? Fe+2 and +2 electron, right? ठीक है. And this 2 electron is going from anodic side to cathodic side, जहां पे क्या है? Oxygen is basically what? Reducing, right? तो oxygen reduce हो रहा है, so O2 + 4H+ and plus how many electrons? 4 electron, right? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको 2 कर लो, right? So in that case it will become what? Your 4 electron हो जाएगा ये, ताकि ऐड करने में आसानी हो अपने को. And 4H+ + 4 electron, that gives you what? 2H2O liquid, right? And just add it. तो ये क्या हो जाएगा? 2Fe solid plus O2 plus 4H+ aqueous, and that is giving you what? 2Fe+2 and plus 2H2O liquid, right? ठीक है. So you can see it's like a cell you can envisage from these two reactions. एक छोटा सा पॉइंट और, ये Fe+2 एज इट इज नहीं रहेगा, ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये Fe+2 फर्दर क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड ऑक्सीडाइज होके ये Fe2O3 फॉर्म कर लेता है, राइट? यहाँ पे यू कैन सी Fe का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +3 है. सो इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड in the presence of O2, right? Atmospheric oxygen, and form what? Fe2O3.XS2, which is nothing but your rust, right? So this is what, these are the two reactions. Important है, ध्यान रखिए इसको. चले आगे बढ़ते हैं. How much charge is required for the following reduction? तो 1 mole of Al+3 है, Al+3 है तुम्हारे पास, right? इसके रिडक्शन के लिए तुम्हें कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए. 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 96487. तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? 3 × 96487 कूलम. तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है. सेकेंड वाले का 1 मोल ऑफ Cu+2 2 Cu, राइट? तो Cu+2 है 1 मोल, इसको अगर Cu में कन्वर्ट करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे हमें? 2 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 मोल पे चार्ज कितना है? 96487. तो 2 मोल कितना हो जाएगा? 2 × 96487 कूलम. तो ये सेकंड का आंसर हो गया. थर्ड का
MnO4 माइनस से MnO2, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस. तो MnO4 माइनस में अगर देखो आप, राइट, दैट इज गोइंग इनटू व्हाट, Mn+2, राइट. एक तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हो, +7 से +2 जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. वैसे नहीं देखना है तो रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते, राइट. हाफ रिएक्शन मेथड में हमने देखा था ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे देख लो Mn+2. पहले तो Mn को बैलेंस कर लो, तो Mn तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो बाई एडिंग व्हाट, वाटर. सो इट विल बी व्हाट, योर 4H2O. देन यू हैव टू ऐड व्हाट, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो फॉर दैट यू ऐड व्हाट, H प्लस. तो दिस व्हाट, 8H प्लस. अब चार्ज बैलेंस करो, तो इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है और इधर 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, मतलब इधर 7 पॉजिटिव है. तो जिधर ज्यादा पॉजिटिव होता है ना, उधर ही इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, राइट, ठीक है ना. सो इधर 7 पॉजिटिव, इधर 2 पॉजिटिव नेट, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. So for 1 mole of MnO4 minus to convert it into Mn+2, you need what? 5 mole of electron, right? So for that, the answer will be what? 5 into 9.6487 coulomb. So that will be the answer of this third part, right? So I hope this question is clear. आगे बढ़ते हैं. How much electricity in terms of Faraday is required to produce Ca from CaCl2? CaCl2 में देखो Ca क्या है? Ca+2 है, राइट. तो Ca+2 कितना इलेक्ट्रॉन लेगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस व्हाट, Ca, राइट, ठीक है ना. इट विल प्रोड्यूस Ca. तो अब देखो, अगर आपके पास 1 मोल Ca चाहिए, अगर आपको 1 मोल Ca चाहिए, तो उसके लिए कितने फैराड की जरूरत है? 2 फैराड की जरूरत है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. एंड 1 मोल Ca का मतलब कितना ग्राम भाई? 40 ग्राम. सो दैट मीन्स व्हाट, 40 ग्राम ऑफ Ca. From here we can say 40 gram of Ca needed what? How many farad? 2 farad, right? तो आपको कितना चाहिए? 20 ग्राम Ca चाहिए. तो 20 ग्राम of Ca needs what? 1 farad. 1 farad is nothing but 96487 coulomb, right? I'm always taking 96487 coulomb. You can also take 96500 coulomb, right? चलेगा इतना, ठीक है ना? Okay. So this is the question. ओके देखो, वैसे तो वो भी फॉर्मूला भी लगा सकते हो. एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो मास डिपॉजिटेड है, राइट, 20 ग्राम, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जेड इंटू क्यू होता है, राइट. व्हाट इज जेड? तो जेड क्या होता है? जेड इंटू क्यू, एम इक्वल टू जेड क्यू. फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा, राइट. तो इसमें जेड क्या है? जेड इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट. किसका इक्विवेलेंट वेट भाई? जो भी डिपॉजिट हो रहा है कैल्शियम का. तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही तो होगा इक्विवेलेंट वेट, राइट. एंड अपॉन क्या? 96500, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, राइट. ओके, सो 96500 मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली अपन लिख भी सकते हैं 96500 कूलम, राइट, या फिर 96487 ले लो, राइट. इनटू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? Q, राइट. तो ये Q ही तो निकालना है. तो यहां पे देखो, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96500 कूलम. और अप्रोक्स मतलब ये तो अप्रोक्स वैल्यू है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पे जाओगे तो 96487 कूलम आ जाएगा, राइट. सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, और in this way also, in which way you are comfortable. I would recommend you to go through this way. It is more conceptual, right? ठीक है, फॉर्मूले पे क्या जाना है, राइट. दूसरा क्वेश्चन भी अपन ऐसे ही करेंगे, मतलब फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, राइट. आई पर्सनली फील कि वो ज्यादा इजी है. सो Al फ्रॉम Al2O3, Al2O3 में देखो तो एल्यूमिनियम कितना है? Al+3. when you will give 3 electron it will give you what? Al, right. तो Al के 27 ग्राम, इसके 27 ग्राम के लिए आपको कितने फैराड चाहिए? 3 फैराड चाहिए. अभी चाहिए कि आपका 40 ग्राम ऑफ Al चाहिए. तो 27 ग्राम अगर आपके पास एल्यूमिनियम चाहिए तो उसके लिए आपको 3 फैराड चाहिए. तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा एल्यूमिनियम के लिए? सो दैट इज व्हाट, 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 27 फैराड. कूलम में लिखना है तो 3 इंटू 40 divided by 27 into 96,487 coulomb, right? So this will be the answer of the second part, right? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. How much electricity is required in coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O to O2? 1 mole of H2O है आपका, ठीक है ना. H2O में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा? O-2 का, राइट. सो O-2, 1 मोल H2O में कितना होगा? 1 ही मोल O-2 होगा. सो दैट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, योर
O2 राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाफ कर दो क्योंकि O-2 आपका 1 मोल है राइट, और इस केस में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा राइट, सो दिस विल गिव यू व्हाट 2 इलेक्ट्रॉन राइट. So how much electricity is required in coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O, right? तो इसमें 1 मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 2 फेराड, which is nothing but 2 into 96487 coulomb, right? So this will be the answer of the first part. Second part, 1 mole of FeO2 Fe2O3. 1 mole of FeO में Fe कितना होगा? Fe plus 2 1 mole ही होगा right, and that you have to convert into what? Fe plus 3 right, ठीक है. So Fe plus 2 Fe plus 3 and plus electron right, oxidize ही करना है ना. So for this you see 1 mole of Fe plus 2 requires what? 1 mole of electron right. So here 1 mole electron, और 1 mole electron पे charge कितना? 1 farad, और 1 farad means what? 96487 coulomb right. So that will be the answer of the second part right. चलिए आगे बढ़ते हैं. A solution of NiNO3 twice is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of Ni is deposited right. तो what mass of Ni, suppose M का जो मास है Ni का जो डिपॉजिट हुआ होगा वो क्या होगा? M equals to Z into Q, और Q को क्या लिख सकते हो? Z into IT. So this is what ZQ, और ऐसे भी लिख सकते हो Z into I into T, बिकॉज करंट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो वी विल यूज व्हाट? ZIT राइट, ठीक है. सो लेट्स टेक, सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है? देखो अपने को निकालना है क्या? Z निकालना है राइट. तो Z के लिए क्या करेंगे? हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो Ni है तुम्हारे पास, क्या Ni+2 में है राइट. तो Ni+2 में है और ये Ni में डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका Z फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया राइट. तो Z फैक्टर अगर 2 हो गया तो इसका मोलर मास 58.7 के आसपास होता है, ठीक है. सो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2. दैट इज व्हाट इट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ni+2 राइट, अपॉन व्हाट? 96500, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ 96500, और 96487 भी ले सकते हो, इनटू I. I की वैल्यू क्या है? 5 एम्पियर इंटू टी ध्यान में रखना, सेकेंड में लेना, ठीक है ना. सो I इंटू टी, तो 20 मिनट्स है ना, तो इंटू क्या कर दो? 60 राइट. सो दिस इज द अमाउंट, और यू कैन से दिस मच ग्राम ऑफ Ni विल गेट व्हाट? डिपॉजिटेड राइट, when you will put, I mean give 5 ampere current for 20 minutes right. So this is the amount of Ni that is deposited at what? Cathode. Obviously reduction ही होगा ना, तो ये अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? डिपॉजिटेड एट कैथोड राइट. डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस राइट, एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है. Three electrolytic cell ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver is deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow, right? What mass of copper and zinc were deposited, right? तो पहला वाला पार्ट करते हैं, how long did the current flow, right? Did the current flow. तो पहला वाला अभी हमने देखा था, जो मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड होगा दैट इज व्हाट? Z इंटू I इंटू T. हमें T निकालना है राइट. सो मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड पता है क्या हमें? देखो यस 1.45 ग्राम, तो ये तो 1.45 आ गया ग्राम राइट. Z कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500. व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? तो यहां पे देखो Ag प्लस है, AgNO3 में क्या है? Ag प्लस, दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड इनटू Ag. CuSO4 में क्या है? ये Cu प्लस 2 इज डिपॉजिटेड इनटू व्हाट? Cu. एंड ZnSO4 में Zn प्लस 2 इज डिपॉजिटेड इनटू व्हाट? Zn. तो जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे राइट, तो इसका मोलर मास ऑफ Ag को डिवाइड करेंगे 1 से, बिकॉज Z फैक्टर इज 1 ईयर. बट इन दीज टू केसेस इसके मोलर मास को डिवाइड करेंगे अपन 2 से, और यहां पे भी इसके मोलर मास को अपन किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. वैसे शायद इसकी जरूरत देखते हैं अभी. तो 1.45 ग्राम Z क्या आ जाएगा? तो Ag का मोलर मास 108, इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय व्हाट? 96,500 इंटू I. करंट कितना है? 1.5 एम्पियर राइट, इंटू T, एंड
कैलकुलेट दिस वैल्यू t विल कम इन व्हाट सेकंड, राइट? तो t की वैल्यू यहां से आ गई 1.45 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 108 into 1.5 and this is what your second, right? So this will be the value, right? Right. तो ये वाला पार्ट हो गया. अब बाकी दोनों पार्ट्स के लिए क्या करेंगे? फैराडे सेकेंड लॉ लगा लो, राइट? सो बाकी दोनों पार्ट के लिए आप क्या कर लो? फैराडे सेकेंड लॉ लगा लो. तो फैराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है, राइट? इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वो फ्लो हुआ है. तो अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आपने Q फिक्स कर दिया, यहां पे देखो, तो Q जब फिक्स कर दोगे, पहला लॉ क्या है? पहले लॉ में आपने सब्सटेंस को फिक्स किया है, आप Q चेंज कर रहे हो. तो अगर सब्सटेंस फिक्स है और अगर तुम Q चेंज करोगे, इफ यू विल चेंज Q, मास डिपॉजिटेड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विल चेंज, राइट? एंड डेफिनेटली इट विल चेंज. दूसरे में क्या किया आपने? Q को फिक्स कर दिया, सब्सटेंस डिफरेंट कर दिया, राइट? तो पहले का जो मास डिपॉजिट होगा, राइट, ठीक है ना, उसको अगर इक्विवेलेंट वेट E1 से डिवाइड, या फिर पहले का जो मास डिपॉजिट होगा और दूसरे का जो मास डिपॉजिट होगा, वो उनके क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा, राइट? दैट इज व्हाट द सेकेंड लॉ, राइट? तो बस यही यूज करना है हमें, राइट? ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग, हमें पता है Ag का, तो Ag का मास जो डिपॉजिट हुआ MAg अपॉन व्हाट MZn, दैट इज इक्वल्स टू E equivalent weight of Ag upon equivalent weight of what? Zn, right? तो MAg तो पता है अपने को, तो MAg is what? 1.5 ही है ना? No, 1.45 है, sorry. So it is what? 1.45 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ जिंक, राइट? वो तो हमें कैलकुलेट ही करना है. लेट सपोज x ग्राम है ये, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, तो वो क्या हो जाएगा? 108/1 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn, तो Zn का अप्रॉक्सीमेटली 65.4 के आसपास होता है, राइट? सो इट इज व्हाट 65.4, बट इस बार 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया आपका Zn का मास, राइट? ठीक है ना. और सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? कॉपर के केस में 1.45 अपॉन y ग्राम, राइट, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ऊपर में तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag सेम ही रहेगा, नीचे में अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा, सो दैट इज व्हाट 63.5 डिवाइडेड बाई 2. So y gram copper will deposit it, x gram zinc will deposit it, right? So simply we have used what? Faraday's law, second law of electrolysis, right? अगर Q तुमने फिक्स कर दिया, तो amount deposited का जो रेशियो होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के क्या होगा? इक्वल होगा. एंड दैट यू कैन इजिली डिराइव फ्रॉम व्हाट? द फर्स्ट लॉ ऑल्सो. फर्स्ट लॉ क्या है? मान लो M1 है, तो M1 इज व्हाट? Z1 इंटू Q, एंड M2 है, दैट इज व्हाट? योर Z2 इंटू Q. Q तो तुमने फिक्स कर रखा है, दोनों का रेशियो ले लो, तो M1 बाई M2 विल बी व्हाट? Z1 क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 अपॉन 96,500. Z2 क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 अपॉन 96,500. कैंसिल आउट कर दो. M1 बाई M2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट E1 बाई E2, राइट? सो इन दिस वे यू कैन सिंपली फाइंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? आगे बढ़ रहे हैं. Okay. Using the standard electrode potential given in table 3.1, predict if the reaction between the following is feasible or not, right? तो करना क्या है? देखो, इन क्वेश्चंस को करना क्या है, राइट? हमें जो आना चाहिए सेल का जो पोटेंशियल आना चाहिए, सेल पोटेंशियल, दैट मस्ट बी व्हाट? पॉजिटिव. अगर वो पॉजिटिव है तो आपका रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि डेल्टा जी में देखो माइनस NFE था, राइट? तो डेल्टा जी अगर E पॉजिटिव है, राइट, डेल्टा जी क्या था आपका? दैट इज व्हाट? योर माइनस NFE. फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वी नो डेल्टा जी इज व्हाट? लेस देन 0, राइट? तो अगर E पॉजिटिव है, F तो पॉजिटिव ही है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस विल व्हाट? योर नेगेटिव. तो अगर E पॉजिटिव होगा तो ये होल वैल्यू नेगेटिव होगी, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. अगर E नेगेटिव आ गया तो दिस होल वैल्यू विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा G विल बी व्हाट? पॉजिटिव. दैट मींस प्रोसेस इज व्हाट? नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? सो दैट्स द की आइडिया, राइट? करना क्या है? रिएक्शन को लिखना है. तो Fe3 प्लस एंड I माइनस है, राइट? ठीक है. सो Fe3 प्लस एंड I माइनस, तो Fe3 plus will go into what? Fe plus 2 and this is what? Electron, right? Reduction हो रहा है, gain of electron. And I minus को अगर आप देखो तो I minus
इज गोइंग टू वॉट योर I2, राइट. एंड इसको तुम क्या कर सकते हो, प्लस 2I माइनस कर दो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2. नेट रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, जरूरत वैसे है नहीं, ऐसे भी कर सकते हो. नेट रिएक्शन चलो लिख भी लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता वैसे तो इससे. 2Fe प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2I माइनस गिविंग यू 2Fe प्लस 2 एंड प्लस व्हाट I2, राइट. अब यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे, ठीक है ना. दिस इज व्हाट एट कैथोड एंड दिस इज हैपनिंग एट व्हाट योर, ये एनोड पे हो रहा है, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे जो E0 है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, तो E0 जो यहाँ पे है दैट इज व्हाट योर Fe प्लस 3 टू Fe प्लस 2. दिस वैल्यू सपोज x वैल्यूज टेबल से देख लो, राइट. एंड इन दिस केस E0 will be what your I2 to I minus, that is what your Y. तो जो E0 सेल होगा वो क्या होगा, E0 कैथोड, तो E0 कैथोड कितना है, X है, माइनस E0 एनोड. एंड ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट योर रिडक्शन पोटेंशियल, देखो 0 से -1 रिडक्शन पोटेंशियल है ये, राइट. सो X माइनस Y. नाउ इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कमिंग व्हाट योर पॉजिटिव, that means this reaction is what your spontaneous, ठीक है ना. बस यही काम करना है हमें, बाकी सब में भी, राइट. तो अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है सो द प्रोसेस विल बिकम व्हाट योर स्पॉन्टेनियस, राइट. तो देख लेते हैं बाकी भी. Ag प्लस एंड Cu है तुम्हारे पास, राइट. तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाया, राइट. एंड Cu is giving Cu plus 2 and plus 2 electron, right. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, right, and then you add it. So Cu plus 2 Ag plus giving you Cu plus 2 and plus 2 Ag, right. तो इसका जो E0 सेल होगा वो क्या हो जाएगा, E0. अच्छा ये जो रिएक्शन है ये तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे. So this is happening at cathode and this is happening at what your anode, right. तो E0 यहाँ पे क्या आ गया, Ag plus 2 Ag, this is what suppose X, and E0 Cu plus 2 2Cu, this is what your Y, right. तो E0 cell कितना हो जाएगा, E0 cell is what, E0 cathode, that is what your X minus E0 anode, that is what Y. तो E0 cell आपका X minus Y आ गया. Now what you have to do, just put that, अगर नहीं पुट करने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट जस्ट यू हैव टू सी वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ इट इज पॉजिटिव द प्रोसेस विल बी व्हाट योर स्पॉन्टेनियस, राइट. तो ये प्रोसेस क्या होगा आपका, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है. तो इस तरह से कर सकते हो. Fe प्लस 3 अगेन किस में जाएगा, Fe प्लस 2 में. Cu विल गिव यू व्हाट, Cu प्लस 2, राइट. ठीक है. सो इन दिस वे जस्ट डू दीज 3, राइट, by yourself, right. The procedure is this one, right. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. I think this is the last question. Yes, predict the products of electrolysis each of the following, right. तो predict करते हैं. An aqueous solution of AgNO3 with silver electrode, right. Silver electrode है, this is not inert electrode, ये ध्यान में रखना है, right. तो AgNO3 है तुम्हारे पास, aqueous solution है, तो एक तो क्या हो जाएगा, AgNO3 है, राइट. सो AgNO3 मतलब क्या है, यहाँ पे एक Ag प्लस है, ऐसे देख लो, Ag प्लस है, NO3 माइनस है, राइट. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट योर एक्वा सॉल्यूशन, तो H प्लस है, OH माइनस, राइट. अब Ag प्लस और H प्लस में किसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है. सो व्हेन यू विल सी इन द रिएक्टिविटी इट विल कम व्हाट, Ag प्लस, राइट. सो बेसिकली व्हाट, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, Ag प्लस will gain electron and it will deposited as what, Az at cathode, right. ठीक है. Az आपका कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके. एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे क्या होगा, बेसिकली देखो यहां पे NO3 माइनस है, OH माइनस है, बट ध्यान रखना है अभी हम एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन.
और ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना. सो हियर यू हैव अ सिल्वर इलेक्ट्रोड, मेटल का इलेक्ट्रोड है, सो इट हैज आल्सो टेंडेंसी टू व्हाट, लूज इलेक्ट्रॉन. सो आउट ऑफ दीज थ्री, NO3 minus, OH minus and silver will basically what, have a tendency to lose electron, right? सो एनोड पे आपका क्या है, सिल्वर जो इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में Ag+ फॉर्म करेगा, और सॉल्यूशन में जो Ag+ होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे क्या हो जाएगा, जाके डिपॉजिट हो जाएगा, राइट? ठीक है ना. सो इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आई मीन यू कैन से, राइट. और मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यू कैन से, नॉट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आई वुड से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, राइट? ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, राइट? इफ यू सी, तो हम लोग वहां पे क्या लेते हैं, कैथोड जो लेते हैं बेसिकली व्हाट, वो प्योर मेटल, मतलब Ag प्योर है यहाँ पे, तो Ag वहां पे डिपॉजिट हो रहा है, और जो एनोड होता है वो इम्प्योर होता है, राइट? तो वहां से जो मेटल्स होंगे वो अंदर जाएंगे, तभी तो उसके नीचे मड आ जाता है, राइट? एंड दैट इज नोन एज व्हाट, एनोड मड, राइट? एनीवे, दिस इज व्हाट, यहां पे क्या है, फर्स्ट केस में क्या होगा, Ag कैथोड पे रिएक्शन होगा, Ag+ विल गेन इलेक्ट्रॉन, विल डिपॉजिट इट एज Ag ऑन सिल्वर इलेक्ट्रोड, एंड एनोड पे क्या होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड ही जो है तुम्हारा, विच इज एक्टिंग एज एनोड, देयर Ag will, you know, it will convert into what, Ag+, it will lose electron, right? And it will go inside the solution. So that is the reaction that will take place in the first case, right? Second, an aqueous solution of AgNO3, but here it is what, platinum electrode, right? तो platinum electrode है, तो देखो कैटायन वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे तो Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट? सो कैथोड पे तो तुम्हारा ये रिएक्शन हो जाएगा, राइट? Ag में डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, राइट? इलेक्ट्रॉन लेके. एनोड में क्या है तुम्हारे पास, NO3- एंड OH-, राइट? एंड OH- विल हैव मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट? सो OH- बेसिकली 4OH- लिख लो, राइट? सो इट विल बी व्हाट, योर 2H2O plus O2 and plus 4 electron, right? So this is what, this particular reaction will take place at what, anode, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये आपका क्या होगा, कैथोड पे होगा, राइट? सो ऑक्सीजन गैस विल इवॉल्व, राइट? ऑक्सीजन गैस आपका क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, राइट? सो दिस विल, एंड व्हाई सो, बिकॉज यू हैव एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट? सो कैथोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी थी, वहां पे पहले क्या था, व्हेन यू टुक Ag इलेक्ट्रोड, राइट? राइट, यहां पे Ag भी कंपटीशन में था, विच इज नॉट इन कंपटीशन राइट नाउ, बिकॉज यू हैव टेकन व्हाट, inert electrode like platinum, right? Fine. So this is what the second case. Third case, a dilute solution of H2SO4 with platinum electrode. Dilute solution है, देखो तुम्हारे पास, तो H2SO4 aqueous solution है, तो H2SO4 तो क्या देगा, H+ है तुम्हारे पास, एंड SO4 2- है, राइट? ठीक है ना. और वाटर के केस में क्या आ जाएगा, अगेन H+ एंड OH-. तो यहाँ पे तो कैटायन सेम ही है, राइट? तो इट विल व्हाट, कैटायन कैथोड पे क्या हो जाएगा, H+ will gain electron, right? It will gain electron and it will evolve what, hydrogen gas, right, at cathode. Or anode पे OH- and SO4 2-, again OH- will have more tendency to what, oxidize. तो anode पे क्या हो जाएगा, it will be what, your, again same reaction लिख सकते हो, 4OH- will give you what, 2H2O, right, plus O2 plus what, 4 electron. So oxygen gas will evolve at anode and hydrogen gas will evolve at what, cathode, in third case, right? Okay. Fourth, an aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode, right? यहाँ पे also platinum electrode, inert electrode, aqueous solution. Aqueous solution मतलब H+ and OH-, and CuCl2 मतलब क्या, Cu+2 and what, Cl-, right? तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो किसके इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, सो इट विल बी व्हाट, Cu2+, राइट? सो Cu2+ विल गेन इलेक्ट्रॉन and it will deposit it as what, Cu, and this will take place at what, कैथोड. ये कैथोड पे होगा. अच्छा, अब एनोड पे क्या होना चाहिए, OH- और Cl-. देखो आइडियली तो वैसे अगर तुम वैल्यूज जाओगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH- का ज्यादा है, राइट? ठीक है ना. सो ज्यादा इसका मतलब क्या, OH- को पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए था Cl- से, बट स्टिल Cl- विल ऑक्सीडाइज एट एनोड. तो एनोड पे, और इसका जो रीजन है, दैट रीजन इज व्हाट, योर
over potential, right? So I hope you know this over potential, right? So because of this over potential, instead of OH minus getting oxidized as anode, Cl minus will oxidize, right? And Cl minus will oxidize at what? Cl2 and plus 2 electrons. So chlorine gas will evolve at anode. Ideally O2 gas evolve hona chahiye tha, but O2 gas is not evolving because of this concept. The concept is what? Over potential, right? So this is the last part, right? Okay. Fine. So we are done with this. So we have discussed all the questions that is given in NCERT, right?